موٹر وے پر دھند اور اسموگ کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی تینوں انٹرچینج سے بھی موٹر وے پر انٹری بند ہے۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں شہریوں کو GT روڈ استعمال کرنے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ موٹر وے پر دھند اور اسموگ کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کی تینوں انٹرچینجز سے بھی موٹر وے پر انٹری بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب حکومتی جتن بھی بے سود، فضائی آلودگی کا سام شہریوں کے سینوں پر لوٹتا رہا۔ خطرناک ایئر کوالٹی انڈیکس سے نظام زندگی مفلوج، سانس لینے کی جنگ جاری رہی۔ فیصل آباد ڈویژن پر دوہری آفت غالب آنے سے ہسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسموگ کے روگی سرکاری ہسپتال میں نزلہ، زکام، گلے، آنکھوں اور سانس کے مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ فیصل آباد بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 5421 مریض ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ میں 590 مریض ریکارڈ کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں روزانہ گلے اور آنکھوں کے مرض میں مبتلا 50 سے زائد بچے اور 130 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ چنیوٹ میں 24 گھنٹے کے دوران DHQ ہسپتال میں 200 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ تعلیم ایک ہفتہ بعد بھی آن لائن کلاسز لگانے میں ناکام۔ محکمہ تعلیم کے پاس مانیٹرنگ یا رپورٹنگ کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ اسکول سربراہان اور اساتذہ کی بھی آن لائن سسٹم میں عدم دلچسپی، بچوں کی پڑھائی کا عمل رک گیا۔ دوسری طرف حکومت نے اگلے ہفتے کے لیے بھی آن لائن کلاسز کا کہہ دیا۔ بچوں کی پڑھائی مزید متاثر ہونے کا خدشہ، اسموگ کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش۔ CEO ایجوکیشن وقار احمد کہتے ہیں اسکول سربراہان کو واٹس ایپ گروپس میں تمام بچوں سے رابطے کا پابند کیا گیا ہے۔ اساتذہ روزانہ ہوم ورک بچوں کو واٹس ایپ کریں گے اور بچے اپنا کام کر کے تصاویر اساتذہ سے شیئر کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسموگ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے۔ فیصل آباد ٹوبہ جھنگ میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور بھٹوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ متعدد گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانے کیے گئے۔ RPO ڈاکٹر محمد عابد خان کے احکامات پر ریجن بھر میں اسموگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں۔ رواں ماہ ریجن میں 172 ملزمان گرفتار اور 179 مقدمات درج کیے گئے۔ دھواں چھوڑنے اور آلودگی پھیلانے والی 1873 گاڑیوں کے چالان، 1605 غیر معیاری فٹنس گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ انسداد اسموگ کے مہم دوران 2,17,46,000 روپے کے جرمانے۔ انسداد اسموگ اقدامات انتظامیہ متحرک۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹے میں دھواں چھوڑنے والی 330 گاڑیوں کے چالان، 126 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرنے والی 10 گاڑی مالکان کے خلاف مقدمات درج۔ جھنگ میں فصلوں کی باقیات جلانے پر 15,000 روپے جرمانہ۔ 2 روز میں 25 گاڑیوں کے چالان، 60,000 روپے سے زائد کا جرمانہ۔ 2 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ معطل، 1 گاڑی بند کی گئی۔ ٹوبہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں دھواں چھوڑنے والی 122 گاڑیوں کے چالان، 2 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی 43 گاڑیوں کی چیکنگ، 3 گاڑیاں بند، گاڑی مالکان کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ نیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو جلانے پر 24 گھنٹوں میں 30,000 جرمانہ، دھواں چھوڑنے والی 121 گاڑیوں کو 2,42,000 جرمانہ کیا گیا۔ جڑامالہ ٹریفک پولیس کا ماحول بگاڑنے والی گاڑیوں کے چالان، رواں ماہ دھواں چھوڑنے والی 250 گاڑیوں کے چالان کاٹ دیے گئے۔ ساڈا حق ایتھے رکھ، فیصل آباد میں کسان حکومت سے جینے کا حق مانگنے لگے۔ کہتے ہیں زرعی انکم ٹیکس بل کسانوں کا معاشی قتل، جینے کا حق چھیننے کے مترادف ہے۔ ظالمانہ ٹیکس نفاذ پر شدید غم و غصے کا اظہار، بل فوری واپس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات ظفر ڈوگر کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے کسانوں نے پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور کیے جانے والے زرعی انکم ٹیکس بل کو مسترد کر دیا۔ ترمیمی بل کے مطابق زرعی زمین کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک سے حاصل آمدن پر بھی ٹیکس لاگو کیا جائے گا، لیکن کسانوں کے نزدیک یہ بل کسانوں سے جینے کا حق چھیننے کے مترادف ہے۔ نئے ترمیمی بل کے بارے میں چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق گجر کا کہنا تھا کہ انہیں اعتراض ٹیکس دینے پر نہیں بلکہ ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار پر ہے۔ جو نیا ٹیکس لگایا گیا ہے اس پہ ایک تو 5 سے 45% کا اس کے اندر ہے ابہام، دوسرا ہے کہ ایگزیکٹو کو بتا دیا گیا کہ آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے،
ठीक, हम चाहते हैं कि कम से कम एक मुरब्बे के ऊपर जितना आपने टैक्स लेना है, और हमारी जो इनकम है वो हमारी वेरी करती है मौसम के एतबार से, फसल के एतबार से, बीज के एतबार से, तो वो कैसे कैलकुलेशन की जाएगी? काश्तकार को तो पहले ही दीवार के साथ लगा दिया गया। दीगर सूबों पर सबकत हासिल करते हुए पंजाब असेंबली ने ज़रूरी इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 पास तो कर लिया, लेकिन फैसलाबाद के किसान इस बिल को किसान मुखालिफ करार दे रहे हैं। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ जफर डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब काश्तकारों को 12 लाख आमदन पर सालाना 15%, जबकि 16 लाख पर 90,000 रुपये फिक्स टैक्स के साथ 20% इजाफी टैक्स अदायगी का हुक्म। 32 लाख आमदन पर 6.5 लाख, 56 लाख आमदन पर 16 लाख और 56 लाख से जायद आमदन वालों को 45% टैक्स देना होगा। नई तरमीमी बिल में मवेशियों पर भी टैक्स लागू होगा। किसानों ने इकदाम माशी कत्ल करार देकर टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रिलीफ सिर्फ वादों तक महदूद, ज़रूरी इनकम टैक्स फौरी लागू। किसान माल मवेशी भी सोच समझ कर रखें। मवेशियों पर टैक्स अदा न करने पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। जंग के किसान ज़रूरी इनकम टैक्स बिल की शदीद मुखालफत पर तुल गए। कहते हैं बिल के नफाज से किसानों पर माली बोझ बढ़ने के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। अब जो एक सुनने में आ रहा है कि ज़रूरी टैक्स लेके आए हैं, वो किसानों के साथ सरासर ज्यादती है। हम पहले अपने बच्चों के अखराजात नहीं पूरे कर रहे, फीसें नहीं पे हो रहे, ऊपर से रोजाना नया टैक्स लग रहे हैं, और अब तो सुनने में आ रहा है कि जानवरों पे भी टैक्स लग रहे हैं। टोबा टैक्सिंग में भी ज़रूरी इनकम टैक्स आयद करने पर काश्तकार हुकूमत से नाला। काश्तकार बोले, हुकूमत ने सरकारी रेट पर अजनास खरीदी, न ही खादों पर सब्सिडी दी गई। हुकूमत ज़रूरी शोबे पर टैक्स लागू करने का फैसला फौरी वापस ले। चिन्योट के किसान भी ज़रूरी टैक्स बिल पर सटपटा उठे। कहते हैं फसलों की कीमत मिल नहीं रही, किसान की आमदन न होने के बराबर, और हुकूमत टैक्स लगा रही है। 2 एकड़ जमीन मवेशी बेचकर हम अपनी खुशी गमी का वक्त गुजारते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। दुहाई देते किसानों का कहना था कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं। करते हैं, पहले जिम्मेदार बहुत परेशान है, ना मकई का रेट है, ना गंदम का। आपने हाल देखा सारों ने, इसी तरह मूंजी का भी यही हुआ है, कमान का रेट नहीं है। जिम्मेदार पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से गवर्नमेंट नए टैक्स रोज बरोज लगा रही है। तो बराए मेहरबानी इन टैक्स को ख़त्म करे। हम किसान इसकी मज़म्मत करते हैं। बाकी जो हमारे जानवरों पर लगा दी है, अगर गरीब आदमी एक आध गाय भैंस रख के अपना दूध बेचकर गुजारा कर रहा है, उस पर भी गवर्नमेंट ने लगा दिया। दीगर शहरों की तरह अहमदपुर सियाल के काश्तकारों ने भी ज़रूरी इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी, टैक्स किसानों की परेशानियां मजीद बढ़ा देगा। कीमत न लगने के अलावा जो है उसके पास वसाइल ही नहीं है, खादें महंगी है, पहले से ही हम बेशुमार किस्म के टैक्स दे रहे हैं। डीजल पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद ज़रूरी आलात पर टैक्स है, बीज पे टैक्स है, खाद पे टैक्स है। तांलियावाला के काश्तकार भी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े, जिन्होंने ज़रूरी इनकम टैक्स बिल को मुआशी कत्ल करार देकर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने टैक्स लाया है, ये जिमींदारां दा कतलेआम है, जिन्हें तुसीं खुले कतलेआम कह सकते हो। ये जिहड़ा है ना हुकूमत दा इकदाम, इस असीं नामंजूर करने आ। लिहाजा जिहड़ा है गया हुकूमत सहूलियात देवन दी बजाय जिमींदारां दा माशी कत्ल कर रही है। लालिया के किसानों को भी मुआशी लाले पड़ गए। किसानों पर सुपर टैक्स का नफास मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आबियाना ज़रूरी टैक्स और FBR को अदायगियां कर रहे हैं। खाद, डीजल, बिजली महंगी होने से फी एकड़ लागत बढ़ गई। फसल की कीमत न होने के बराबर मिलती है। नए टैक्सेस के नफाज से किसान मजीद बदहाल होगा। कोर्ट में काश्तकारों ने ज़रूरी इनकम टैक्स किसानों पर जुल्म करार दे दिया। काश्तकार बोले, हमसाया मुल्क में किसानों को रिलीफ दिया जाता है, जबकि हमें सिर्फ तकलीफ दी जा रही है। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी सस्ती, अंडे महंगे होना शुरू हो गए। मछली की कीमत सर्दी के साथ साथ बढ़ने लगी। गिराफरोशों ने सब्जियां, फल और मसाले अवाम की पहुंच में ना रहने दिए। हर सब्जी पर 10-20 रुपए इजाफी बटोरने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 19 रुपए सस्ता होकर 487 से 468 रुपए फी किलो हो गया। बाजार में 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आलू साबिका कीमत 118 रुपए फी किलो पर बरकरार। बाजार में 130 रुपए किलो। प्याज 4 रुपए सस्ता होकर 132 रुपए फी किलो से 128। बाजार में 140 रुपए फी किलो। टमाटर 10 रुपए महंगा होकर 132 से 142 रुपए किलो। बाजार में 150 रुपए किलो। बंद गोभी 10 रुपए महंगी होकर 65 रुपए। बाजार में 110 फी
किलो। अनाज कंधारी की कीमत बगैर इजाफे के 260 रुपए बाजार में 270 फी किलो हो गई। झंग में चिकन सस्ते दामों बिकने लगा। ब्रायलर 19 रुपए सस्ता होकर 468 रुपए किलो हो गया। अंडे 2 रुपए इजाफे से 341 रुपए दर्जन। मार्केट में अंडे 360 रुपए दर्जन मिलने लगे। मछली की कीमत 510 रुपए किलो तय। मार्केट में मछली 700 रुपए फी किलो तक मिलने लगी। नए आलू की कीमत में 5 रुपए इजाफा। आलू के सरकारी नर्ख 130, बाजार में 140 रुपए किलो मिलने लगे। तेल की कीमत 245 रुपए किलो, बाजार में 270 रुपए किलो हो गए। प्रोसेसिंग में भी चिकन 19 रुपए फी किलो सस्ता। ब्रायलर की कीमत 468 रुपए फी किलो तय कर दी गई। शहर में अंडों की फी दर्जन कीमत 339 रुपए मुकर्रर। आलू के सरकारी नर्ख 130, मार्केट में 150 रुपए किलो मिलने लगे। प्याज 2 रुपए सस्ते होकर भी सस्ते न मिल सके। प्याज की सरकारी कीमत 130, मार्केट नर्ख 180 रुपए किलो कर दिए गए। पालक 24 की बजाय 50 रुपए की मिलने लगी। सेब 230 रुपए किलो, केले 120 रुपए दर्जन हो गए। चिन्योट में मुर्गी सस्ती, अंडे महंगे होना शुरू। चिकन 19 रुपए सस्ता होकर 468 रुपए फी किलो हो गया। अंडों की कीमत 2 रुपए इजाफे से 341 रुपए दर्जन हो गई। मुनाफाखोरों ने सब्जियां खाना मुश्किल बना दिया। 115 रुपए किलो वाले आलू 150 रुपए में बिकने लगे। लहसुन की सरकारी कीमत 650, मार्केट में 700 रुपए किलो। 7 रुपए महंगे होकर 45 रुपए किलो हो गए। अनार कंधारी की कीमत 260 रुपए किलो, मार्केट में 350 रुपए किलो हो गए। जबकि दूसरी जानिब आटा चक्की से निकलकर फिर महंगाई के मोटरवे पर दौड़ने लगा। मुनाफाखोरों ने कीमत 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी। गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को पेट का दोजख भरने के लिए जान के लाले पड़ गए। कहते हैं रोटी बुनियादी जरूरत है, यूं लगता है चक्की में आटा नहीं गरीब पिस रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदपुर सियाल में आटा भी महंगा हो गया, जिससे गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशानी का शिकार है। चक्की पर आटा 85 से 90 रुपए फी किलो में बिकने लगा। मार्केट में भी 90 रुपए फी किलो आटे की फरोख्त जारी। रवां साल गरीब सार्फिन को सब्सिडाइज्ड आटे की सहूलत से भी महरूम रखा गया। शहरी बोले, रोटी इंसान की बुनियादी गिजाई जरूरत है। आटा महंगा होने से ये भी पहुंच से दूर हो रही है। यूं लगता है महंगाई की चक्की में आटा नहीं गरीब पिस रहे हैं। जो आटा है इंसान की बुनियादी जरूरत है, ठीक है। अगर ये भी इंसान को अगर मैसर नहीं हो गरीब आदमी को, तो कहाँ जाए, ठीक है। जो बंदा जिसकी दिहाड़ी जो है वो 700-800 रुपए है, वो अपने अहल याल को, जिसका खानदान बड़ा, वो किस तरह उसको मैनेज कर सकता है। दूसरी जानिब चक्की मालिकान का कहना था कि गंदम का रेट बढ़ने से आटे के दाम बढ़ गए। हम भी निर्ख में इजाफे पर मजबूर हैं। आटा महंगा होने की वजह ये है क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। इस वजह से फिर हमने सारा कुछ अपना भी देखना होता है, बिजली के बिल वगैरह सबको पूरा करना पड़ता है। इस वजह से फिर आटा भी थोड़ा मिलता है। शहरियों ने गंदम और आटा सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि झंग में 78 करोड़ रुपए लागत का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। 4 माह में वाटर पाउंड की खुदाई का काम भी मुकम्मल ना हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा ताखीर का शिकार। मंसूबे का 2023 में 2 बार टेंडर हुआ। तीसरा टेंडर जनवरी 2024 में जारी किया गया, लेकिन मंसूबे पर काम का आगाज जुलाई 2024 में हुआ। ठेकेदार की सुस्ती की वजह से मंसूबे की खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना हो सकी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से मंसूबे के लिए 78 करोड़ रुपए के फंड्स पहले ही फराहिम कर दिए गए हैं। हम 4 माह गुजर जाने के बावजूद 5 वाटर पाउंडर्स की खुदाई का काम अभी तक मुकम्मल ना हो सका, जिस पर शहरी नाला है। नाला और सीवरेज का जो पानी है बहुत गंदा हो चुका है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ गंदे पानी वास्ते प्लान लाया जा रहा है, वो हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे जल्द से जल्द लाया जाए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे शहर में लगाया जा रहा है, लेकिन उसका काम बहुत स्लो है। हमें साफ पानी के लिए हुकूमत से गुजारिश है कि उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट का काम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी किया जाए, ताकि हमें साफ पानी ज़्यादा जल्दी मुहैया हो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तकमील से रोजाना 8 क्यूसिक पानी साफ करने की तवक्का है, जिसे सीवरेज के गंदे पानी को साफ करके महकमा ज़राअत के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे आबी आलूदगी कम होगी और आब पाशी के लिए पानी मैसर आएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। जबकि दूसरी जानिब सरकारी दफातर में धक्के खाने पर मजबूर शहरियों के लिए अच्छी खबर। टोबा में दस्तक ऐप ने सर्विसेज का आगाज कर दिया। साइलिन पैदाइश और अमवात समेत तलाक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ई स्टाम्प पेपर और टैक्स अदायगियों समेत 60 से ज़ायद खिदमात घर की दहलीज पर हासिल कर सकेंगे। तफसीलात मुबशिर नकवी की रिपोर्ट में।
टेक्सिंग में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के दस्तक प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। शहरियों को दहलीज पर खिदमात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि इब्तदाई मरहला में शहरी दस्तक मोबाइल ऐप के जरिए 32 सरकारी खिदमात अपनी दहलीज पर हासिल कर सकते हैं। दस्तक मोबाइल ऐप के जरिए 60 से ज्यादा सरकारी खिदमात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का मजीद कहना था कि शहरी अब पैदाइश व अमवात और तलाक सर्टिफिकेट, नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और गाड़ी के इंतकाल की सहूलत घर बैठे हासिल कर सकेंगे। टैक्स, निकाह सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जायदाद टैक्स, स्टाम्प पेपर जैसी बुनियादी सरकारी दस्तावेजात का हसूल भी घर बैठे मुमकिन होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो मरियम दस्तक प्रोग्राम है वो डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग में भी उसका आगाज़ कर दिया गया है और ये चीफ मिनिस्टर का जो विजन है कि आवाम को जितनी भी अवामी सर्विसेज हैं वो उनकी दहलीज तक पहुंचानी है, इस सिलसिले में बड़ा अहम और मौसर कदम है। और इस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 32 के करीब ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें अवामुन्नास को सरकारी दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शहरी अब सर्विसेज के हसूल के लिए ऐप डाउनलोड करें या हेल्पलाइन 1202 पर कॉल मिलाएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, ओवरटेक्सिंग।